ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். மங்களகரமான தை வெள்ளிக்கிழமையில் லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் உண்டாக, செல்வ வளம் பெருக சுவாமி வேதாந்த தேசிகர் இயற்றிய ஸ்ரீஸ்துதி ஸ்தோத்திரத்தின் சிறப்புகளையும் ஸ்ரீஸ்துதி ஸ்தோத்திரமும் பார்க்கலாம். ஒரு பிரம்மச்சாரி தன்னுடைய திருமணத்திற்கு பணம் வேண்டி ஊர்ல போய் பல பேர்ட்ட பணம் கேட்கிறார். அது கிடைக்கல. சுவாமி தேசிகர்ட்ட போய் கேட்க அவர் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயார வேண்டி அருளியதுதான் இந்த ஸ்ரீஸ்துதி. இது போல ஆதிசங்கரர் ஒரு ஏழை பெண்மணிக்கு கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் மூலம் அனுகிரகம் செஞ்சிருக்கார். இருவருமே அந்த தங்க காசுகளை தங்களுடைய கைனால தொடல, மாறாக மிகவும் ஏழ்மை நிலையில வந்து கேட்டவர்களுக்கே மனமிறங்கி செல்வம் கிடைக்கிறதுக்கு அருளினார்கள். இத வந்தனா அனுகிரகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இவை அனைத்துமே நமக்காக எழுதிய ஸ்துதிகள் தான். அவர்களுக்கு இதோடைய தேவை கொஞ்சம் கூட கிடையாது. தமக்கென்று திரவியமே வைத்துக் கொள்ளாம யாச்சகம் எடுத்து ஜீவித்து வந்தவர் தான் சுவாமி வேதாந்த தேசிகர். ஊரில் பெரியவர்களாக யார் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக விரோதிகள் இருப்பார்கள். அந்த பெரியவரை கட்டாயம் அவமானப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் என்று சூழ்ச்சி செய்கிறவர்களும் சிலர் இருப்பார்கள். அதே போலத்தான் இங்கு வேதாந்த தேசிகருக்கும் சில விரோதிகள் இருந்து வந்தார்கள். சர்வதந்திர ஸ்வதந்திரர் அப்படி போற்றப்படுபவர் தான் வேதாந்த தேசிகர். அதாவது வெளி உதவி எதுவும் இல்லாமலே தாமே எதையும் சாதிக்க கூடியவராக இருப்பவருக்குத்தான் இந்த பட்டம் அருளப்படும். சர்வதந்திர ஸ்வதந்திரர் அப்படின்ற பட்டம் அருளப்படும். அவருக்கு இது பொருந்தாது அப்படின்னு உலகத்துக்கு காட்டி அவரை அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்று சில விரோதிகள் நினைத்து சூழ்ச்சி செய்தனர். பரம ஏழையான ஒரு அந்தணன் பணம் இல்லாததுனால திருமணம் ஆகாமல் சிரமப்பட்டு இருந்தான். தேசிகரோட விரோதிகள் என்ன பண்றா, அந்த ஏழை அந்தணன்ட்ட போய் நீ போய் தேசிகர்ட்ட போய் உன்னோட கல்யாணத்துக்கு பணம் வேணும்னு சொல்லி உதவி கேளு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறா. என்ன, அவர் சர்வதந்திர ஸ்வதந்திரர் அப்படின்றதுனால யாருக்காகவும் அவர் பிறர்ட்ட போய் யாசிக்க முடியாது, யாசிக்க கூடாது. அவரால பணம் கொடுக்க முடியாத போகிற போது அவரை அவமானப்படுத்த எல்லோரும் திட்டம் போட்டனர். தேசிகருக்கு இது விரோதிகளோட சூழ்ச்சி அப்படின்றது தெரிந்து விட்டது. இருந்தாலும் அவர் தன்னை அவமானப்படுத்த வந்தவற்றையும் கருணை தான் கொண்டாரே தவிர சிறிதும் இதை அவமானமாக அவர் கருதவே இல்லை. வெள்ளிக்கிழமையான நாளை காலை காஞ்சி பெருந்தேவி தாயார் சன்னதிக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஏழை அந்தனன்ட்ட சொல்லி அனுப்பினார். ஏழையும் தேசிகரும் கோயிலுக்கு போகிறத அறிந்த மக்கள் எல்லோருமே அந்த ஆலயத்துல திரண்டா பெருந்தேவி தாயாரான மகாலட்சுமி மனமுருக வேண்டி ஒரு ஸ்துதி செய்தார். அதுதான் இந்த உத்தமமான ஸ்ரீஸ்துதி ஸ்தோத்திரம். உடனே பொன்மழை பொழிந்தது. அதை பிரம்மச்சாரிக்கு கொடுத்தார் வேதாந்த தேசிகர். விரோதிகளால் பெரியவர்களுக்கு கடைசியில் மேலும் மேலும் பெருமையே உண்டாகும் அப்படின்றத இதனால நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது. தேசிகருக்கும் அப்படித்தான் பெருமை உண்டாயிற்று. தேசிகர் திருமகள் அருள் பெற வேண்டி ஸ்ரீஸ்துதி என்னும் இந்த 25 ஸ்லோகங்களை கொண்ட ஸ்தோத்திரத்தை பாடும்போது 16வது ஸ்லோகத்தை சொல்லிக்கொண்டே வரபோது திருமகளும் தங்க காசுகளை அள்ளி வாரி கொடுக்க ஆரம்பித்தாள். எனவே திருமணம் போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏதேனும் பணத்தடை ஏற்பட்டாலோ அல்லது தினமும் கையில் பணம் புழங்கவும் இந்த ஸ்ரீஸ்துதியின் 16வது ஸ்லோகத்தை பாராயணம் செய்யறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம இன்னைக்கு இந்த பதிவுல முழுமையான ஸ்ரீஸ்துதியை பார்க்கலாம். ஸ்ரீஸ்துதிஹி ஸ்ரீ கனகதாரா லக்ஷ்மி ஸ்தவ ராஜக. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக. श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. मानातीत प्रतित विभवां मङ्गलं मङ्गलानां वक्षः पीठीं मधुविजयिनो भूषयन्तीं स्वकान्त्या प्रत्यक्षानुश्रविक महिमा प्रार्थिनीनां प्रजानां श्रेयो मूर्तिं श्रियमशरणस्त्वां शरण्यां प्रपद्ये. आविर्भावः कलशजलदावद्वरे वापि यस्याः स्थानं यस्य सरसिजवनं विष्णुवक्षस्थलं वा भूमा यस्य भुवनमखिलं देवि दिव्यं पदं वा स्तोकप्रज्ञैरणवधिगुणा सूयसे सा कथं त्वं स्तोतव्यत्वं दिशति भवति देहिभिस्तूयमाना तामेव त्वाम् अनितरगतिस्तोतुमाशं समानः सिद्धारम्भः सकलभुवनश्लाघनीयो भवेयम् सेवापेक्षा तव चरणयो श्रेयसे कस्य न स्यात् यत्सङ्कल्पाद् भवति कमले यत्र देहिन्यमीषां जन्मस्तेम प्रलय रचना जङ्गमा जङ्गमानां तत्कल्याणं किमपि यमिनाम् एकलक्ष्यं समादौ पूर्णं तेजस्फुरति भवति पादलाक्षारसाङ्कम्
निष्प्रत्यूह प्रणयघटितं देवि नित्यानपायं विष्णुस्त्वं चेत्य नवधिगुणं द्वन्द्वमन्योन्यलक्ष्यं शेषचित्तं विमलमनसा मौलयश्च श्रुतीनां सम्पद्यन्ते विहरणविधौ यस्य शय्या विशेषाः उद्देश्यत्वं जननि भजतो रुञ्जितोपाधिगन्धं प्रत्यग्रूपे हविषि युवयोरेकशेषित्वयोगात् पद्मे पत्युस्तव च निगमैर्नित्यमन्विष्यमाणः नावच्चेदं भजति महिमानर्तयन्मानसं नः पश्यन्तीषु श्रुतिषु परितः सूरिवृन्देन सार्धं मध्ये कृत्य त्रिगुणफलकं निर्मितस्थानभेदं विश्वाधीशप्रणयिनि सदा विभ्रमद्यूतवृत्तौ ब्रह्मेशाद्या ददति युवयोरक्षशारप्रचारम् अस्येषाणा त्वमसि जगतः संश्रयन्ती मुकुन्दं लक्ष्मीः पद्मा जलधि तनया विष्णुपत्नीन्दिरेति यन्नामानि श्रुतिपरिपणान् एवमावर्तयन्तः नावर्तन्ते दुरितपवनप्रेरिते जन्मचक्रे त्वामेवाहुः कतिचिदपरे त्वत्प्रियं लोकनाथं किं तैरन्तः कलहमलिनैः किञ्चिदुत्तीर्यमग्नैः त्वत्सम्प्रीत्यै विहरति हरौ सम्मुखीनां श्रुतीनां भावारूढौ भगवति युवां दम्पती दैवतं नः आपन्नार्तिप्रशमनविधौ बद्धदीक्षस्य विष्णोः आचक्युस्त्वां प्रियसहचरीम् एकमत्योपपन्नाम् प्रादुर्भावैरपि समतनुः प्राद्वमन्वीयसे त्वं दूरोक्षिप्तैरिव मधुरता दुग्धराशेस्तरङ्गैः दत्ते शोभां हरिमरकते तावकी मूर्तिराद्या तन्वी तुङ्गस्तनभरणता तप्तजाम्बूनदाभा यस्यां गच्छन्त्युदयविलयैर्नित्यमानन्दसिन्धौ इच्छावेगोल्लसितलहरी विभ्रमं व्यक्तयस्ते आसंसारं विततमखिलं वाङ्मयं यद्विभूतिः यद्भ्रूभङ्गात् कुसुमधनुषः किङ्करो मेरुधन्वा यस्यां नित्यं नयनशतकैर्येकलक्ष्यो महेन्द्रः पद्मे तासां परिणतिरसौ भावलेक्षैस्त्वदीयैः अग्रे भर्तुः सरसिजमये भद्रपीठे निषण्णाम् अम्बोराशेरधिकतसुधा सम्प्लवादुत्थितां त्वां पुष्पासारस्थगितभुवनैः पुष्कलावर्तकाद्यैः क्लुप्तारम्भः कनकक्लेशैरभ्यपिञ्चन् गजेन्द्राः आलोक्य त्वाम् अमृतसहजे विष्णुवक्षस्थलस्तां शापाक्रान्ता शरणमगमन् सावरोधाः सुरेन्द्राः लब्ध्वा भूयस्त्रिभुवनमिदं लक्षितं त्वत्कटाक्षैः सर्वाकारस्थिरसमुदयां सम्पदं निर्विशन्ति आर्तत्राणव्रतिभिरमृता सारनीलाम्बुवाहैः अम्बोजानाम् उषसि मिषताम् अन्तरङ्गैरपाङ्गैः यस्यां दिशि विहरते देवि दृष्टिस्त्वदीया तस्यामहमिकां तन्वते सम्पदोगाः योगारम्भत्वरितमनसो युष्मदैकान्त्ययुक्तं धर्मं प्राप्तुं प्रथममिह ये धारयन्ते धनायां तेषां भूमे धनपतिगृहात् अम्बरादम्बुदेर्वा दारा निर्यान्त्यधिकमधिकं वाञ्छितानां वसूनां श्रेयस्कामा कमलनिलये चित्रमाम्नाय वाचां चूडापीडं तव पदयुगं चेतसा धारयन्तः छत्रच्छाया सुभगशिरसश्चामरस्मेरपार्श्वाः श्लाघाशब्दश्रवणमुदिता स्रग्विनः सञ्चरन्ति ऊरीकर्तुं कुशलमखिलं जेतुमादीनरातीन् दूरीकर्तुं दुरितनिवहं त्यक्तुमाद्यामविद्याम् अम्बस्तम्भावधिकजननग्रामसीमान्तरेकाम् आलम्बन्ते विमलमनसो विष्णुकान्ते दयान्ते
जाताकाङ्क्षा जननि युवयोरेकसेवाधिकारे मायालीडं विभवमखिलं मन्यमाणास्तृणाय प्रीत्यै विष्णोस्तव च कृतिनः प्रीतिमन्तो भजन्ते वेलाभङ्गः प्रशमनफलं वैदिकं धर्मसेतुं सेवे देवि त्रिदशमखिला मौलिमालार्चितन्ते सिद्धिक्षेत्रं शमितविपदां सम्पदां पादपद्मं यस्मिन्नीशन्नमितशिरसो यापयित्वा शरीरं वर्तिष्यन्ते वितमसि पदे वासुदेवस्य धन्याः सानुप्रासप्रकटितदयैः सान्द्रवात्सल्यदिग्धैः अम्बस्निग्धैरमृतलहरी लब्धसब्रह्मचर्यैः धर्मे तापत्रयविरचिते गाढतप्तं क्षणं माम् आकिञ्चन्यग्लपितमनदैरार्दयेता कटाक्षैः सम्पद्यन्ते भवभयतमी बाणवस्त्वत्प्रसादात् भावा सर्वे भगवति हरौ भक्तिमुद्वेलयन्तः याचे किं त्वामहमिह यतः शीतलोदारशीला भूयो भूयो दिशसि महतां मङ्गलानां प्रबन्धान् माता देवी त्वमसि भगवान् वासुदेवः पिता मे जातः सोऽहं जननि युवयोरेकलक्ष्यं दयायाः दत्तो युष्मत्परिजनतया देशिकैरप्यतस्त्वं किं ते भूयः प्रियमिति किल स्मेरवक्त्रा विभासि कल्याणानाम् अविकलनिधिः कापि कारुण्यसीमा नित्यामोदा निगमवचसा मौलिमन्दारमाला सम्पद्दिव्या मधुविजयिनः सन्निधत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवनप्रार्थना कामधेनुः कल्याणानाम् अविकलनिधिः कापि कारुण्यसीमा नित्यामोदा निगमवचसा मौलिमन्दारमाला सम्पद्दिव्या मधुविजयिनः सन्निधत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवनप्रार्थना कामधेनुः उपचितगुरुभक्तेरुत्थितं वेङ्कटेशात् कलिकलुषनिवृत्त्यैः कल्पमानं प्रजानां सरसिजनिलयाय स्तोत्रम् एतः पठन्तः सकलकुशलसीमा सार्वभौमा भवन्ति उपचितगुरुभक्तेरुत्थितं वेङ्कटेशात् कलिकलुषनिवृत्त्यै कल्पमानं प्रजानां सरसिजनिलयाय स्तोत्रम् एतत् पठन्तः सकलकुशलसीमा सार्वभौमा भवन्ति कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः इति श्रीवेदान्तदेशिकविरचिता श्रीस्तुतिसम्पूर्णा। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।